So, who is the CR of the 3A, 3A, 3B? This is the combined class, now. Good morning, sir. Morning. Sir, this is Chirag Jha. I am अच्छा CR अच्छा अच्छा 3A. चिराग, हाँ हाँ. तो चिराग आपका 3A है ना ग्रुप, Yes, sir. और 3B. Morning, sir. Sir, I'm Shuchita Arora. हाँ हाँ हाँ. मतलब ये दोनों क्लास कंबाइंड है ना. Yes, sir. ओके. So please ensure attendance. I think maximum have joined. We can see 79 almost participants are there. We can see. So let us start the law subject. I have already taken one topic like gender issues and gender sensitization, legal issues of gender issues. Today we will start, and this is most important to understand, and few aspects, even few points, important aspects are even asked in your examinations, right? And everybody is well acquainted. I think there is a 50 marks paper on law subject. Therefore, there is a need to pay attention towards the sessions even. The objectives of the sessions are Suchita, can you read this sessions objective, please? Yes, sir. Please. Sessions objective. At the end of the sessions, we will be able to identify various laws, define classification of offences, explain criminal and civil proceedings, describe special proceedings, illustrate railway security, that is state police, GRP, RPF. Okay, thank you very much. So we will cover within these sessions these objectives. First of all, what is law? What is your normal understanding, present understanding, existing
experience even about law, then how these have been classified. Then we will also go through deeply, thoroughly about the classification of offences. We will also see how these criminal and civil proceedings are conducted, and then we will also see what are the special proceedings, and then we'll come to discuss the security in railways, about security in railways, like how this police, GRP, RPF works, and what is their jurisdiction. So please pay attention towards these objectives. These two legal maxims are taken into the consideration while whenever any judgment is pronounced by the court, right? Ignorantia facti exugat and ignorantia juris non exugat means ignorance of fact is an excuse. On the other hand, the ignorance of law is not an excuse. Means mistake of fact is an excuse, but mistake of law is not an excuse. तो इसको हम बाद में explain करेंगे. So this is the basis on which any judgment is passed by the court, even whether some mistake, by mistake something has happened, or someone have deliberately breached the norms of law, existing law, right? So several jurists have defined about the law. पहले ये पढ़ लीजिए, फिर आपका क्या अनुभव है उस पर हम लोग बात करेंगे. Salmond defined this as law as the body of principles recognized and applied by the state in administration of justice. Austin taken in their own way, like law is the command of sovereign. Everybody have defined on the basis of their own feeling and experiences. Bond has defined like law is the social engineering. आप सभी इंजीनियर्स हैं, किस तरह का सोशल इंजीनियरिंग है ये लॉ. महात्मा गांधी has just experienced like law is nothing but the convenience of the powerful. उन्होंने जैसा फील किया वैसा लिख दिया. Law presupposes the existence of state. वैसे सामान्य अंडरस्टैंडिंग क्या है कानून की? What is the normal understanding about law? Anybody can respond. What is your normal understanding? Law क्या है? कोई बात करे?
Feel free. Mayank, hello. Yes, sir. विधि या कानून से क्या समझते हैं? Sir, law is a set of rules. Good, very good. Which we have to abide by. बहुत बढ़िया. If you see several dictionaries and several and then you can just draw the inference about these thoughts of the jurists and prominent eminent persons, and even if you go through the lexicon law or Oxford English Dictionary or Collins Gem English Dictionary, as you see something has been written, law is a legal science. So normally we can understand like laws are the sets of rules passed by the parliament of the country or state legislations to run the society, to run the system, to regulate the system, to run the society, organization, system smoothly. Smooth for the smooth functioning of any system or society, है ना? ऐसा हम लोग नॉर्मली समझते हैं. And after defining so many things, you will find that in Collins Gem English Dictionary, somewhere it has been written like law, meaning of the law, हेलो, हाँ जय हिंद, मैंने देख लिया है, मैं भेज दूंगा. हाँ, कब की है ट्रेन? ठीक है, ठीक है. Law is a legal science. What is science? Can anybody define science? Everybody, all of you are having the science background and studied for so many years. How can you define the science subject? As I said earlier, feel free to respond. Science क्या है? Sir, science is application of knowledge and understanding.
Thank you, Ronit. Anybody else? Sir, Giving a predictable and understandable logic to nature's phenomena. Suyash, how are you? Sir, I'm very good. मैं तो बाहर आने को तैयार हूँ पर सर आने नहीं दे रहे सर अभी। अभी ठीक हो? हाँ ठीक हूँ सर, मैं 2 दिन में हो गए। कोई सांस वास लेने में दिक्कत नहीं होती ना? अरे नहीं नहीं सर, सांस लेने में तो पहले भी नहीं हो रही थी, अभी ठीक है, अभी काफी इम्प्रूवमेंट हो गया है। चलिए ठीक है, हम उस दिन पहुंचे तो ट्रेस हो गया। यस सर। हाँ? मतलब मेरे सामने ये घटना घटी तो मुझे लगा कई लोग उसमें परेशान भी हो रहे थे कि पता नहीं क्या हुआ, है ना? बट दैट वाज ट्रेस्ड। तो अगली स्टेज में ट्रेस हो जाता है, चीजें तो बच जाती हैं, है ना? यस सर। ओके फाइन, थैंक यू, ऑल द बेस्ट सुयश, टेक केयर। यस तो एक रिस्पॉन्स मैं और चाहूंगा किसी तरफ से। साइंस को अभी तक अच्छे से डेफिनेशन पे भी देखी है आपने साइंस की? Hello, sir. हाँ अनिकेत बताइए। Sir, science is the study of physical world and natural laws. ओके sir, यस, सर लीगल साइंस है लॉ, इसका मतलब ये है कि इसमें काफी सारे टेक्निकल टर्म्स हैं, डेफिनेशंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, इसलिए इसे साइंस कहते हैं। हमने पहले ये पूछा कि साइंस की डेफिनेशन आपने कभी देखी है? हाउ द साइंस हैज बीन डिफाइंड, कुछ टर्म्स, कुछ वर्ड्स while defining the science? Thank you, Chirag. You made the good effort, and that is very praisable, no? Commendable. But how the science has been defined, कई लोग हो सकता है कि मोबाइल ट्राई कर रहे हो, गूगल भी ट्राई कर रहे हो। Learning is the endless process. There is no limits of learning. Learning never ends. It is a continuous process. देखिए, हम साइंस का बैकग्राउंड लिए हुए इतने साल का है, बट कभी साइंस की डेफिनेशन में नहीं गए कि हाउ द साइंस हैज बीन डिफाइंड। द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ, देखिए साइंस क्या है? सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ थिंग्स, कंपाउंड्स, एलिमेंट्स, substances, plants, even human body, based on systematic study of things, based on observation, practical और experiment है। एक्सपेरिमेंट है। आप जब कोई भी थ्योरी पढ़ते थे तो जाके उस पर प्रैक्टिकल होता था ना, होता था कि नहीं होता था, बताइए? हेलो, ऐसे ही अभी जब एक एग्जांपल ले लीजिए, जब कभी भी कोई नियम लागू करने की स्थिति आती है, कोई डिजास्टर मैनेजमेंट लागू हो जाता है, या अभी एक एग्जांपल देखिए, when the article 370 abrogated, and जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, पार्लियामेंट ने पास किया, 370 को खत्म कर दिया, तो who were affected, on whom the practical was done? लॉकडाउन हुए, इतने लॉकडाउन हुए, कोई
कुछ कंटेनमेंट जोन बनाए गए, कुछ रेड जोन बनाए गए, तो किस पर प्रैक्टिकल हुआ बताइए? एक्सपेरिमेंट किस पर हुआ? सर पब्लिक ये नियम कानून जो अप्लाई किए गए इतने दिन से, वो किस पे प्रैक्टिकल होता है? सिटीजन्स पे होता है ना, हम लोगों पे होता है, ह्यूमन बीइंग पे होता है। एंड लॉज आर फ्रेम्ड फॉर सिटीजन्स. Citizens has to abide the rules and regulations. तो कानून किसके लिए बनता है बताइए? सिटीजन्स के लिए सर। सिटीजन्स के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए. ऐसा एक भी कानून बता दीजिए जो जानवरों को पनिश करने के लिए कोई कानून बना हो. हाँ, जानवरों को लोगों से, सिटीजन से, ह्यूमन बीइंग से बचाने के लिए कानून जरूर बने. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ, ऐसे ही बहुत सारे क्रूएल्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे कानून बने हैं. लेकिन सब तो किसके लिए बने? मनुष्यों के लिए बने, सिटीजन्स के लिए बने. और प्रैक्टिकल किस पर है? एक्सपेरिमेंट किस पर होगा? बोलिए. ये लीगल साइंस, लॉ ऐसा साइंस है जो मनुष्यों पे प्रैक्टिकल होता है. दिस इज अ ग्रेट साइंस, लीगल साइंस. आर वी गेटिंग दिस थॉट? यस हेलो. कोई भी कानून जब पास होता है, पार्लियामेंट पास करती है, स्टेट लेजिस्लेशन पास करता है, तो वो इंप्लीमेंट किस पर होता है? प्रैक्टिकल किस पर करते हैं? इंप्लीमेंट कहाँ होता है? इसी सोसाइटी पे होता है ना. सोसाइटी कैसे बनती है? मनुष्यों से बनती है, मानवों से बनती है, सिटीजन से बनती है. देयरफॉर लॉज आर फ्रेम्ड फॉर सिटीजन्स एंड प्रैक्टिकल एंड एक्सपेरिमेंट ऑन सिटीजन्स. इसीलिए कोई भी कानून, कानून की खासियत क्या होनी चाहिए, उसके मेरिट्स क्या होने चाहिए, उसके एक अच्छा कानून कैसा होना चाहिए, उस पर सब पे हम लोग बात करेंगे. तो ये प्रैक्टिकल ऑन ह्यूमन बीइंग है. एंड वन थिंग वी शुड कीप इन आवर माइंड, लॉज आर फ्रेम्ड फॉर सिटीजन्स, फॉर ह्यूमन बीइंग. So these are the purposes of framing any law. Ultimate goal of the law is to provide justice, and this is framed for maintaining public order, public tranquility, public peace, to protect rights of individuals, citizens, to preserve freedom, to bring changes in the society, in the system, to resolve conflict between two parties. ये सिविल लॉ में चला जाएगा. टू सेट एंड स्ट्रेंथन वैल्यूज, मोरल वैल्यूज को भी एक तरह से वो करने के लिए बहुत सारी कानून बनाए जाते हैं. टू डिफाइन रिलेशनशिप अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. तो इस तरह से कानून और मेनी मोर डायरेक्शंस में भी देयर. These are the sources of law. As I said earlier, the laws are framed by the parliament of the country, state legislations, and sometimes judicial precedents becomes law. जैसे कि हथकड़ियों के प्रावधान पे कोई वर्डिक्ट आया उसका सुप्रीम कोर्ट का, तो वो कानून बन गया, सीआरपीसी में डाल दिया गया. अभी इन द रिसेंट पास्ट ट्रिपल तलाक पे कोई वर्डिक्ट आया, आर्टिकल 14, 15 को लेते हुए, जेंडर इक्वलिटी और
इस पे जस्ट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द मुस्लिम वुमेन। तो वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई ना कोई कानून इस पर बनाया जाए, तो पार्लियामेंट में वो पास हुआ। इसी तरीके से विशाखा वर्सेस राजस्थान का जो जजमेंट आया था 1997 में, निर्भया वाले के बाद ये बहुत पहले ये खैर कानून बना दिया गया। 2013 में कानून बनाया, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट आया। उससे पहले 1997 में ये वर्डिक्ट आया था। 16 साल बाद वो कानून बनाया गया, अपेक्स कोर्ट का डायरेक्शन था। तो समटाइम्स जुडिशियल प्रेसिडेंट्स becomes law. Laws are framed according to the customs, conventions, principles of morality, on the basis of the professional opinion, and on the basis of foreign law. This Constitution of India is the highest law of the land. If you see, this is the highest law of the land, Constitution of India. We will see the Railways Act, we will see the IPC. This is the general law. Maximum offences in the society have been covered, and beside this, on the basis of some subject and some in some part of the country, some local laws are also framed. तो इस तरह का, लेकिन every laws are framed according to the Indian Constitution, just to satisfy the intentions of the articles. The laws are framed. So what is sanction and plea bargaining? So sanction is a penalty for disobedience of law. Sanctions are means to enforce the obedience of law. These are the sanctions on civil side and criminal side. So here on the civil side, the cases are complaints are filed, plaints are filed for this damages, nullity, cost, restitution of property, specific performances, injunction means authoritative orders, and on the criminal side, these are the penalties. Sentence to death. This is also known as the capital punishment. Capital punishment, right? Sentence to death, imprisonment for life, imprisonment for term, fine, simple imprisonment, rigorous imprisonment. Rigorous imprisonment का मतलब होता है with hard labor. वहाँ जेल में रहते समय कुछ न कुछ इनसे काम भी कराया जाता है जो भी कैदी होते हैं। सिंपल इम्प्रिजनमेंट का मतलब है कि उनसे कोई हार्ड लेबर वगैरह वहां पे नहीं कराया जाता। यहाँ रिगरस इम्प्रिजनमेंट में उनसे खटने के लिए आपने फिल्मों में देखा होगा, और लोग हथकड़ी बेड़ी लगी हुई है और पत्थर तोड़ रहे हैं लोग, इस तरह से कुछ काम। लेकिन आप देखेंगे जेल में कभी विजिट करिए तो कुछ न कुछ काम वहाँ खेती बाड़ी का भी काम, जेल की कुछ जमीनें रहती हैं उसको भी काम कराते हैं लोग, और जो कैदियों के अपलिफ्टमेंट के लिए, सुधार के लिए बहुत सारी उसकी जो अर्निंग होती है, बहुत सारे सिलाई कढ़ाई बुनाई के काम भी रहते हैं वहाँ जेल में कराए जाते हैं। तो then sometimes civil and criminal proceeding can go side by side. For example, if there is a dispute, land dispute between two parties, and already some civil proceeding
civil suit has been filed and civil proceeding is under progress. And after some time, if both the parties assemble on the land and some scuffle has been taken place and some scuffle have taken place and some of the members of both the groups have got injury, then the FIR can be lodged against the parties and criminal proceeding will be started. So civil and criminal proceeding can go side by side. Now this is most important और यहाँ से कुछ न कुछ आपसे पूछा भी जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ से पूछा जाएगा. पेन पेपर रख लीजिए, नोटबुक रख लीजिए सामने, कुछ चीजें नोट कर लीजिएगा. इसमें हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीजें देयर इज अ नीड टू नोट डाउन, राइट? So as law has been classified, नेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ. नेशनल लॉ को हम लोग इधर देखते हैं तो सिविल लॉ दैट इज टेकन एज अ प्राइवेट लॉ. This civil law is the law which resolves the dispute between the two individuals, two parties. Criminal law, the offense is against the state. तो कभी भी अगर ऑफेंसेस, सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, जो भी किडनैपिंग, अब्डक्शन, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप, ये सब जो भी थेफ्ट, रॉबरी, किडनैपिंग, डकैती, ये सारे के सारे अगेंस्ट द स्टेट ऑफेंस माने जाते हैं. सो क्रिमिनल लॉ इज द पब्लिक लॉ, राइट? एंड if offense is done, if offense is committed, that is taken as the offenses against the state. इसीलिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऐसे मामलों को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसको एस्टैब्लिश करता है, और गवर्नमेंट का जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, डिफेंस वाला अपना लोग हायर करते हैं. नाउ these have been defined as special law and local law. So special law and local law have been defined under this is most important और पूछा जाता है ये अक्सर एग्जाम में आपके. स्पेशल लॉ और लोकल लॉ, किसी को आइडिया है व्हाट इज स्पेशल लॉ एंड व्हाट इज लोकल लॉ? एनीबॉडी कैन एक्सप्लेन? किसी को आइडिया है? हेलो, मिस्टर हनिंदर सिंह. हनिंदर, किसी को आइडिया नहीं है स्पेशल लॉ क्या है, लोकल लॉ क्या है? सर हाँ चिराग बोलिए. सर स्पेशल लॉ का एक एग्जांपल दे सकता हूँ. जैसे बताइए. AFPA होता है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट. वेरी गुड. तो सर वो मतलब स्पेशल प्रोविजंस होंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन के लिए. बाकी लोकल लॉ रीजन वाइज हो सकते हैं, कंट्री लेवल पे भी हो सकते हैं. हाँ, सर मतलब एज अ होल कंट्री भी एप्लीकेबल हो सकते हैं या पर्टिकुलर स्टेट वाइज भी हो सकते हैं. बहुत अच्छा
ठीक है, दिस इज द नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग. आई वाज आस्किंग अबाउट योर नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग. ऑल ऑफ यू आर इंजीनियर्स, सो वी कैन, क्योंकि ये जो लॉ है ना वो अपने इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस पे ही बना हुआ है, तो कुछ न कुछ आइडिया रहना चाहिए. ये जो आपने आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो आपने बताया आफ्सा, ये एक एक्सेप्शनल है. वो लोकल लॉ स्पेशल लॉ दोनों का अपवाद है. बताते हैं कैसे स्पेशल लॉ और लोकल लॉ डिफाइंड है. स्पेशल लॉ हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 41 ऑफ द आईपीसी. नोट कर लीजिए कहीं सभी लोग, प्लीज नोट डाउन. स्पेशल लॉ इज द लॉ which is applicable to particular subject like explosives, subject like railways, subject like railway property, subject like information, subject like taxation. So these are the subject like terrorism. So these are taken as a special law. Special law, once again I would like to say, repeat, reinforce. स्पेशल लॉ, इसकी डेफिनेशन अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा. स्पेशल लॉ हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 41 ऑफ द आईपीसी. स्पेशल लॉ इज द लॉ which is applicable to particular subject, and the speciality of these laws are passed by the parliament. These laws are passed by the parliament of the country and is applicable to whole of the India. पहले बहुत सारे कानून ऐसे बनते थे और उसमें लिख दिया जाता था कि दिस एक्सटेंड. आईपीसी को देखिए, अभी आप शॉर्ट टाइटल एक्सटेंशन में जाके देखिए, सेक्शन 1 में जाके देखिए, बहुत सारे कानूनों के सेक्शन 1 में जाके देखिए. ये आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 नाउ दिस हैज बीन रिस्टोर्ड, कि अब ये सारे कानून जम्मू और कश्मीर में लागू हो जाते हैं. नहीं तो लिखा क्या रहता था कि दिस लॉ, दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड, क्या लिखा रहता था? हेलो, आप लोग बात नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा पढ़ने में. कुछ बोलिए. हेलो, यस सर. कभी उस दिन मीना कहाँ है? मिस्टर मीना, वेयर इज मिस्टर मीना? मिस्टर मीना इज देयर? कौन से क्लास में थे? बहुत बोल रहे थे उस दिन. अच्छा, पार्टिसिपेशन था, पार्टिसिपेट कीजिए. कुछ पूछा जाता है तो अपना आपको ये हम तो ऐसे ही मान के चल रहे हैं कि भाई आप सभी इंजीनियर्स हैं, कानून को पढ़ने का मौका कितना मिला होगा, इसलिए जो आपका अपना अनुभव है उस पर बात करिए. हम आपको लीगल बात बताएंगे, किताबी भी बात बताएंगे, कानूनी बात बताएंगे. पंकज जी, पंकज कुमार. यस सर. कभी आपने किसी कानून को जाके देखा है, उसमें लिखा रहता था, अभी भी आपको मिल जाएगा, कि दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. यस सर. ये सारे कानूनों में आपको मिलेगा जो भी लिखे गए हैं. अभी 2, 3, 4 कानून का मैं नाम बता देता हूं जिसमें आज भी वो
तो उस वक्त भी नहीं लिखा था। जैसे रेलवे एक्ट है उसमें नहीं लिखा है, आरपीयूपी एक्ट है उसमें नहीं लिखा है, स्पेशल एक्ट है ये। और ये लिखा हुआ इट एक्सटेंड्स, चूंकि जहां जहां जम्मू कश्मीर में भी रेलवे है, अब वहां तो रेलवे एक्ट लागू होगा, तो उसमें ये नहीं लिखा था इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन ये स्पेशल स्टेटस के चलते ये बहुत सारे कानून आज भी गुपकार गैंग एक तैयार हो गया है वहां पे। कल आप लोग समाचार में सुन रहे होंगे या कहीं कुछ न्यूज मिलती होगी, ये गुपकार का नाम सुना है आपने? किसी ने? चिराग, मिस्टर झा, झा जी। Gupkar Alliance is legal parties for especially. हाँ, जस्ट टू रोड आर्टिकल 370, ये गुपकार रोड है जहां ये फारूक अब्दुल्ला रहते हैं, गुपकार रोड है, वहीं बैठ के ये लोग डिक्लेरेशन किए तो उसी को गुपकार डिक्लेरेशन बोलते हैं। ठीक बात है? Yes, sir. गुपकार का कोई ऐसा लिटरल मीनिंग नहीं है। गुपकार वो उसके फारूक अब्दुल्ला के घर के पास से जो रोड निकली है, उसका घर वहीं पे है, रेजिडेंस है वहीं पे, गुपकार रोड पे। दैट इज द फेमस रोड है। तो गुपकार डिक्लेरेशन इन्होंने बनाया, तो अभी अपोजिट पार्टीज को, बीजेपी वगैरह, गुपकार गैंग भी बोल रहे हैं लोग, और गैंग ही है जो आर्टिकल 370 इतने दिन से 70 साल से उसको स्पेशल स्टेटस बिना मतलब जो भी है, कोई भी कानून आप, हम लोग तो पढ़ते पढ़ाते बहुत साल हो गया कानून को, इतने साल से देख रहे हैं, एलएलबी किया तब भी देखा, माइंड में घुसता था कि ये क्यों लिखा रहता है कि इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द जम्मू एंड कश्मीर। कानून की किताब कोई उठा के देखिएगा, आज भी उसमें ऐसे ही मिलेगा। जो हमारे नई पीढ़ी वाले लोग हैं उनको ये ज्यादा पता नहीं होगा। आप सभी इंजीनियर्स हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया, आपने नहीं देखा होगा उसमें, बट कभी सिविल सर्विसेज के लिए जाएंगे या पढ़ें कहीं, तो आपको किसी भी कानून की किताब को उठा कर देख लीजिए, वहां आपको ऐसे मिलेगा। सो स्पेशल एक्ट इज द एक्ट, स्पेशल लॉ इज द लॉ which is applicable to a particular subject. As I given some example like railways, railway property, explosives, information, taxation, बहुत सारे जो सब्जेक्ट पे ये कानून बनाया जाता है, और ये इट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड इज applicable to whole of the India. And local law has been defined under section 42 of the IPC. Local law is the law which is applicable to a particular part of India, which is applicable to particular part of India. Like बिहार में दारूबंदी वाला जो कानून आया वो लोकल लॉ है, and that is applicable to the state of Bihar only. Liquor Prohibition Act यहाँ गुजरात में बहुत पहले लागू किया गया, इनैक्ट हुआ, that is local law. अभी मोकोका महाराष्ट्र में, that is passed by the Maharashtra State Assembly. महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज्ड जो क्राइम वाले, प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, यूपी को का अभी पास हुआ है यूपी में। इसी तरीके से जो लोकल गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट जिन कानून को पास करती है वो लोकल लॉ बोले जाते हैं। चिराग झा ने बहुत अच्छी बात बताई, थैंक यू चिराग। वो इस आफ्सा है वो एक तरह से स्पेशल लॉ है, बट समटाइम्स इट बिकम्स एज इट वर्क्स एज अ लोकल लॉ। चिराग, मिस्टर चिराग, यस सर।
ठीक है, ये चूंकि इसको पास तो करती है कौन, पार्लियामेंट पास करती है, ये पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया कानून है ना आपसा, यस सर, but it is applicable to particular part of India like Jammu and Kashmir, Manipur, त्रिपुरा, इन जगहों पे जो लागू है, तो ये दिस इज applicable to particular part of India, right? तो इसको this is special law as well as the local law, so this is exception. Now every law has been divided into two groups. मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप सभी अपना नोटबुक निकाल के रखिए और ये डेफिनेशंस, लोकल लॉ, स्पेशल लॉ, सब्स्टेंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ, या तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आएंगे या तो कभी आपको डेफिनेशन भी देने के लिए पूछा जा सकता है, तो ध्यान दीजिए ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्लीज pay attention towards these definitions. Now, every law has been divided into two groups. This is most important. आप चूंकि आपको लॉ की बेसिक्स के लिए ये रेलवे में इतना दिन तक सर्विस करेंगे, तो लॉ के बारे में थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, इसलिए बेसिक्स को बताने के लिए जरूरी है कि इन बेसिक्स पर ध्यान दिया जाए. So every law has been divided into two groups. First group of the law is known as the substantive law, and second and subsidiary group of the law is known as procedural law. So substantive law is the law which determines, please note, substantive law is the law which determines the duty, rights and liability of the individual in the society. Duty, rights and liability. जैसे कि for example, the offense of theft, जो चोरी का अपराध है, that is very popular in the society. आजकल तो पॉपुलर बहुत ज्यादा छेड़छाड़ के मामले हो गए हैं, चोरी का तो कहीं पता नहीं चलता है, हाईलाइट भी होते हैं. तो जैसे बिना अधिकारिता के किसी का सामान उठाने का आपको अधिकार नहीं है, बिना उससे पूछे आप उसका सामान तो नहीं ले सकते. ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते. हाँ, बिना किसी के कंसेंट से उसको छूना भी तो अपराध है ना. यस सर, हैरेसमेंट होता है सर वो. ठीक है, तो इसका मतलब कि आपने बिना किसी के कंसेंट से आपने किसी का सामान उठा लिया, इसका मतलब आपने अपना कर्तव्य नहीं किया. आपका कर्तव्य नहीं बनता था कि आप उसका सामान उठा लें, और कर्तव्य तब होता जब उससे आप पूछ लेते और फिर अपने यूज में लेते उस सामान को. तो एक तो ये कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, और अगर आपने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, दूसरे का सामान उठाया, तो इसका मतलब कि आप दूसरे के संपत्ति के सुखाचार से वंचित कर रहे, abused the rights of another individual in the society. And how far you are liable, मतलब somebody is liable who commits the offense of theft, the liability is fixed by the punishment in criminal law. Therefore, ladies and gentlemen, if somebody talks about what is or somebody asks about the criminal law,
then the answer should be in one line, that criminal law is the law where the liability is fixed by punishment. Liability is fixed by punishment. तो चोरी के लिए जो अपराध का चोरी के अपराध के लिए दंड का प्राविधान है वो अंडर एक तो इसको बोलना कि वो हटा देगी डस्टबिन। हाँ, कल भी यहाँ पोछा वोछा नहीं लगा था, पता है, आज भी है? 11 बजे लगवा दो, है ना? तो लाइबिलिटी इज फिक्स्ड बाय पनिशमेंट। अब किसी को चोर कर देने से जब तक की सजा नहीं हुई तो क्या वो चोर हो जाएगा क्या? किसी पर इल्जाम लगा दिया तो बताइए। इसका मतलब कि इल्जाम लगाने के, आरोप लगाने भर देने से कोई अपराधी नहीं हो जाएगा। इसका मतलब देयर इज अ नीड to prove his guilt, to prove his offense, to prove his act or omission. तो अपराध के लिए अपराध को साबित भी तो करना पड़ेगा। अगर अपराध का आरोप लगाया गया तो साबित करने की जितनी प्रक्रिया वगैरह है, प्रोसीजर वगैरह है, वो दूसरे ग्रुप में, ये उसको बोलते हैं प्रोसीजरल लॉ। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस वन। सब्सटेंटिव लॉ इज द लॉ which determines the duty, rights and liability of the individual in the society. The examples of these laws are Indian Penal Code, which defines several offences like theft, robbery, kidnapping, abduction, rape, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, डकैती, रॉबरी, सब इसमें दिया हुआ, आईपीसी में दिया। रेलवेज एक्ट, आपका आरपीओपी एक्ट, अभी नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो देखेंगे, ये सारी चीज पढ़ाई बताया गया। इसमें सब डेफिनेशन, अपराधों के डेफिनेशन दिए हुए हैं। चोरी का अपराध कैसे होता है, कब बनता है, ऑफेंस रेप कब बनता है, मर्डर कब कहा जाएगा, तो सारा कुछ डेफिनेशन आपको मिलेगा, उसका पनिशमेंट मिलेगा। रेलवे एक्ट में हम जब बात करेंगे तब रेलवे एक्ट के बारे में समझाएंगे, वहां भी क्या क्या अपराध के दायरे में है, किस तरह की एक्टिविटी, एक्ट्स और ओमिशंस अपराध के दायरे में है। तो जो प्रोसीजरल लॉ है उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो प्रोसीजरल लॉ इज द लॉ विच डिटरमिन्स द प्लीडिंग्स, प्रोसीजर्स एंड प्रूफ्स। प्लीडिंग्स, प्रोसीजर्स एंड प्रूफ। प्लीडिंग क्या है? व्हाट इज प्लीडिंग? किसी को आइडिया है? प्लीड, PLEAD, pleadings। If somebody has been alleged to have committed any offense, crime, तो उसे मौका दिया जाना चाहिए कि वह अपने को डिफेंड कर पाए कि गलत उस पर आरोप है कि सही आरोप है, कि क्या है क्या नहीं है। सो नोबडी शुड बी पनिश्ड अनहर्ड, ये अकॉर्डिंग टू द नेचुरल जस्टिस ऑफ लॉ, राइट। तो हर व्यक्ति को जिस पर भी कोई अपराध का आरोप लगाया गया है उसको अपने बचाव करने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। तो जो प्लीड है वो प्लीडिंग्स उसको बोलते हैं। प्रोसीजर्स का मतलब
कि जो Sambhavi, you want to say something? Hello? नो सर, सॉरी सर, वो अनम्यूट हो गया था, सॉरी। Okay, okay, okay. No issue. तो pleadings हो गया, procedure, several procedures have been given under the procedural laws like criminal procedure code. किसी पर अगर आरोप लगाया गया चोरी का, डकैती का, मर्डर का, रेप का, कोई भी अगर आरोप लगाया गया, इंफॉर्मेशन दी गई, एफआईआर लॉज हुआ, फिर एफआईआर से लेकर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, बेल, रिमांड, सारा प्रोसीजर कुछ दिया हुआ है, ट्रायल का प्रोसीजर दिया हुआ है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में। अभी हम लोग आगे आके बात करेंगे जब कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पे तो बात करेंगे। सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड, अगर सिविल मामला है, इफ देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन टू पार्टीज, तो उसमें तो सारा कुछ प्रक्रिया प्रोसीजर सब वहां दिया हुआ है। एविडेंस एक्ट है जो प्रूफ से संबंधित, सबूतों से, साक्ष्यों से संबंधित जो कानून है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में दिया हुआ है। Then procedural law is the law. I would like to reinforce, repeat, procedural law is the law which determines the pleadings, procedures and proofs. Now we come to see the criminal proceeding. The word crime has not been defined either under the Indian Constitution or under any other law for the time being in force. The identical word offense has been defined under section 2N. नोट कर लीजिए, ये डेफिनेशन पूछी जाती है। डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, डेफिनेशंस, तो ध्यान रखिए। The word offense has been defined under section 2N of the CRPC. Offense means any act, ACT, small act. Offense means any act or omission made punishable by any law for the time being in force and include any act in respect of which a complaint may be made under section 20 of the Cattle Trespass Act 1871. So since laws are framed for human being, citizens, therefore the human being is the essential ingredient which constitute the offense. Under the definition you will find even any of the definition of the crime offense, you can see whoever, whosoever, 5 or more person, 2 or more person, ये शुरुआत से चलता है definition. Mens rea means guilty intention, evil intention, ये मानसिक अवस्था है कि that human being, that group of human being must be having some mens rea or guilty intention or evil intention, and with that intention, if he or she causes the physical act or omission, actus reus, इसको physical act or omission बोलते हैं, and the result of the physical act or omission should be the injury to another human being, injury to the another human being. So ऑफेंसेस को क्लासिफाई किया गया है
एक तरह से चार भागों में कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो इनकी डेफिनेशन जरूरी है और ये अक्सर पूछा भी जाता है एग्जाम में। कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में एफआईआर दर्ज होता है धारा 154 में सीआरपीसी में। और कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है? हम लोग कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल को समझ लें। नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये सब हमने ले रखा है यहाँ पे। आगे आके फिर हम बैक टू आई विल कम टू दिस स्लाइड, बैक टू दिस स्लाइड, बट सी इस तरह की डेफिनेशंस आपको मिलेंगे। तो हम थोड़ा सा क्लासिफाई कर दें। Cognizable offense has been defined under section 2C of the CRPC. ये दिमाग में रख लीजिए, अक्सर पूछा जाता है। And I will share the slide, no issues, but अभी इसको देख लीजिए। तो cognizable offense means an offense for which, and cognizable case means a case in which police officer, in accordance with the first schedule of CRPC or under any other law for the time being in force, arrest without warrant according to the first schedule of CRPC or under any other law for the time being force, the police has power to arrest without warrant in case of cognizable offences. Therefore, these offences are serious in nature, punishable with serious, rigorous or stringent punishments. Like, for example, of cognizable offences like murder, rape, kidnapping, abduction, डकैती, रॉबरी, थेफ्ट, तो ये सारे गंभीर मामले जो हैं ये सब कॉग्निजेबल ऑफेंस के दायरे में रखे गए हैं। और इनका पनिशमेंट आप देखेंगे प्रथम अनुसूची को, फर्स्ट अनुसूची में, तो ज्यादातर 3 या 3 वर्ष से अधिक जेल या इम्प्रिजनमेंट या एक तरह से कारावास से दंडनीय है ये अपराध। 3 या 3 साल से अधिक, 3 साल से कम वाले अगर आप देखेंगे तो नॉन कॉग्निजेबल के दायरे में रखे हुए हैं, लेकिन एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। And non-cognizable offense have been defined under section 2L of the CRPC. Non-cognizable offense means an offense for which, and non-cognizable case is the case in which police officer has no authority to arrest without warrant. तो cognizable offenses के मामले में पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तार करने का अधिकार है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के मामले में पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है, ये ध्यान देना होगा। देन बेलेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस फॉर व्हिच बेलेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस व्हिच इज शोन एज बेलेबल in the first schedule of CRPC or is made available under any other law for the time being in force, right? And non-bailable offense means other offenses. So if somebody is arrested, what is the basic difference between bailable and non-bailable offense? If somebody has been arrested for bailable offense, if he claims bail, he can claim bail as a matter of his right. But in case of non-bailable offenses, if somebody applies for bail, he cannot claim bail as a matter of his right. It depends on the discretion of the magistrate or court. So therefore, this in case of non-bailable offences,
the offender can given bail, and it depends on the discretion of the magistrate or court only, right? यहां तक किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए. हेलो. कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बिलेबल, नॉन बिलेबल. अब आगे चलिए, इसको वारंट, समन्स केस, वारंट केस, कंप्लेंट को हम बाद में डिफाइन करते हैं. अब सिविल में इसको क्रिमिनल प्रोसीडिंग देख लीजिए जल्दी से. तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग, एफआईआर कब लॉन्च होता है? एफआईआर कब लॉन्च होता है? In case of the commission of the cognizable offense, if information is given to the officer in charge of a police station, then FIR is lodged and investigation started. In the event of the investigation, during the course of investigation, if a offender is arrested, or after lodging FIR, if offender is arrested, then investigation is started. So, ladies and gentlemen, it is the FIR which sets criminal law in motion. This is the FIR, first information report. तो ये धारा 154 है CRPC की, जहां पर ये लॉज होता है. और अगर मान लीजिए कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जैसे सिंपल हर्ट है, मैरिज से संबंधित कोई आपसी प्राइवेट कुछ डिस्प्यूट है, तो ऐसी स्थिति में गाली गलौज वाला मसला है, सिंपल हर्ट हो गया, तो ऐसी स्थिति में ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में अगर सूचना दी जाती है, तो जो थाने का SHO है, इंचार्ज है, वो इंफॉर्मेंट को बोलेगा, सूचना देने वाले को, कि भाई मेरे पास बिना वारंट गिरफ्तार करने का अधिकार नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में नहीं है, अतः आप जाइए और न्यायालय में कंप्लेंट दाखिल करिए. न्यायालय में क्या दाखिल करिए? हेलो, कंप्लेंट सर. कंप्लेंट. हेलो, अभी हम कंप्लेंट के बारे में बताएंगे आपको. तो ये खासकर सीरियस मामले में, जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के मामले में FIR लॉज हुआ, अगर अरेस्ट हुआ पहले तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ, या इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया, इन द मीन टाइम इफ अरेस्ट इज मेड, देन अरेस्ट के बाद क्या होगा? या तो जेल होगा, या तो अरेस्ट के बाद क्या होगा? या तो जेल होगा, या तो बेल होगा. क्या होगा? या तो जेल होगा या फिर बेल होगा. जेल और बेल. ठीक. अब एक स्थिति और हो सकती है कि when the accused is since accused has to be produced in any case within the 24 hours after arrest, the arrested person should be must be produced before the court within the period of 24 hours. I repeat, ये भी अक्सर 24 घंटे वाला पूछा जाता है. This is constitutional binding on the part of the arresting authority. No person shall be detained beyond the period of 24 hours. Therefore,
when an accused is produced before the court, court has to give bail or remand or jail, judicial custody. तो स्थिति ये रहती है कि ये रिमांड शब्द आप लोगों ने सुना होगा, कई बार फ्रिक्वेंटली सुनते होंगे, व्हाट इज रिमांड? तो रिमांड क्या है रोनित? रोनित जी, हेलो हेलो, what is demand? Anybody can respond? सर पुलिस में पूछताछ करना, पुलिस के द्वारा। सर मुकदमे से पहले का समय जो ट्रायल से स्टार्ट होने से पहले जो टाइम होता है बेसिकली वो रिमांड का टाइम जब वो कस्टडी। इसका मतलब क्या हुआ कि कायदे से पुलिस की जिम्मेदारी है, ऐसा सीआरपीसी की धाराओं में लिखा हुआ है कि द इन्वेस्टिगेशन shall be completed within the period of investigation shall be completed within the period of 24 hours. ये सामान्य समय है कि तुरंत आप इन्वेस्टिगेशन करके मामले में एक तरह से चार्जशीट दाखिल करें या फाइनल रिपोर्ट लगाएं। लेकिन अगर मामला गंभीर हो गया और there is a need of further investigation and investigation has not been completed within the period of 24 hours. अगर आप देखेंगे धारा 167 है सीआरपीसी में, there is section 167 of CRPC which provides the procedure for remand, and the heading of that section is when investigation cannot be completed within the period of 24 hours, then police applies for remand. And if the accused arrested person again sent back to the police custody for further investigation, 2 days, 3 days, 4 days, 7 days, कुछ इस तरह का समय आप देखते होंगे। बहुत सारे जो एमिनेंट और आजकल प्रचार प्रसार में मीडिया के द्वारा दिखाया जाता है, नेक टू नेक मीडिया ट्रायल होता है, उसमें बताया जाता है कि अब रिया को 3 दिन का रिमांड दिया गया या फलाने को 3 दिन का 1 दिन का रिमांड दिया गया। इस तरह का आजकल तो पूरा ओपन सब ट्रायल चल रहा है। तो 3 दिन का रिमांड दिया गया, 5 दिन का रिमांड दिया गया, 7 दिन का दिया गया, 14 दिन का रिमांड दे दिया गया मैक्सिमम। तो ऐसा शब्द सुनने में आते हैं। इसका मतलब क्या है कि when investigation cannot be completed within the period of 24 hours and the arrested person has been given remand, remand means the sent to the police custody, back to the custody of police or back to the judicial custody jail. या तो जेल भेज दिया गया या तो जुडिशियल कस्टडी भेजा गया, जुडिशियल रिमांड हो गया या आपका पुलिस रिमांड हो गया। तो पुलिस रिमांड का मतलब होता है कि सेंट टू पुलिस कस्टडी। अब स्थिति आई कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया, देन चार्जशीट इज फाइल्ड, if sufficient evidences are there and trial is started and judgment is passed, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, conviction or acquittal. If somebody is not satisfied with the judgment, then he can prefer the appeal to the higher courts. So this is all about to the criminal proceeding. यहाँ पे ये definition हमने बता दिया था। थोड़े से डेफिनेशन देख लीजिए। सम्मन्स, व्हाट इज सम्मन्स केस, व्हाट इज वारंट केस एंड व्हाट इज कंप्लेंट। तो सम्मन्स केस मीन्स अ केस relating to an offense and not being a warrant case.
summons case means a case relating to an offense and not being a warrant case, then we should understand what is the warrant case. So warrant case means a case and relating to an offense punishable with death or imprisonment for life. तो इसको ध्यान दीजिए एक बार फिर से. वारंट केस मीन्स अ केस relating to an offense punishable with death, imprisonment for life or imprisonment exceeding 2 years. Exceeding 2 years. तो इसका मतलब we can interpret that the offences which are punishable up to 2 years of imprisonment, those offences are taken as summons cases, right? Then complaint has been defined under section 2D of the CRPC, and this is also important. The definitions are oftenly asked in your exams. So complaint means an allegation. Complaint means any allegation made orally or in writing to a magistrate with a view to his taking action, that some persons, whether known or unknown, has committed an offense, but it doesn't include a police report. So a complaint और पुलिस रिपोर्ट में अंतर है. कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के मामले में एक तरह से पुलिस रिपोर्ट दाखिल होती है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के मामले में कंप्लेंट दाखिल की जाती है, फाइल की जाती है इन द कोर्ट, राइट? तो वी शुड गो फास्ट. दिस इज द सिविल प्रोसीडिंग. ध्यान दीजिएगा, ये सारी डेफिनेशन जो यहाँ दिया हुआ है ये सब याद रखिएगा. ये एग्जाम में सब पूछा जाता है, अक्सर ही एग्जाम में सारी चीजें पूछी जाती हैं. सो इम्पोर्टेंट है ये सब, इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से. सिविल प्रोसीडिंग इज बेस्ड ऑन द लीगल मैक्सिम्स like ubi jus ibi remedium, and this means where there is a right there is a remedy. There is a right, where there is a right there is a remedy. हिंदी में इसको बोलते हैं कि जहां अधिकार है वहां उपचार है. जहां अधिकार वहीं पे रेमेडी अवेलेबल है. अगर अधिकारिता नहीं है आपकी तो आप रेमेडी का मतलब नहीं, रेमेडी नहीं कर पाएंगे. ठीक है. The notice is served under section 80 CPC Civil Procedure Code and in the form of suit. This suit is filed in the form of plaint or written statement. Suit is filed for injunction or status quo, authoritative order. Injunction means, and in the form of plaint or written statement. Framing of issues are done. Then recording of evidences are followed. The evidences are recorded by the court and judgment is given. Decree is passed, and if somebody is not very much satisfied with the judgment of the court, he can or she can just prefer the appeal to the higher courts. These are the special proceedings. ध्यान रखिए, ये in the infringement of fundamental rights, these writs are issued habeas corpus, mandamus. ये फंडामेंटल राइट्स के इन्फ्रिंजमेंट में ये सब होता है. हैबिस कॉर्पस, मैंडमस, को वारंटो, प्रोहिबिशन, सर्सियरारी, इसको पढ़ लीजिएगा. मेरे से पूछिएगा अगर कहीं कोई समझने में दिक्कत है. जैसे हैबिस कॉर्पस है
So if somebody has been wrongfully confined, arrested and wrongfully confined, then this writ is issued to the persons, the authority who has wrongfully confined the particular person. जैसे अभी हाइबिस कार्पस वगैरह ये भी अर्नब गोस्वामी वगैरह ने भी एक तरह से इशू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दिया था, हाई कोर्ट में दिया, हाई कोर्ट ने इंटरिम जमानत नहीं दी, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहां पे उसको इंटरिम जमानत वगैरह मिल गई रिलीज करने के लिए. तो समटाइम्स this habeas corpus is issued for releasing a person who has been wrongfully confined. Mandamus quo warranto are the orders. Mandamus is the order writ which provides, which is issued to the authority, governments, state government, public authorities, just to do the corrective, to observe the corrective measures. Quo warranto means under what authority somebody has occupied some post. Prohibition का मतलब स्टे ऑर्डर्स वगैरह का है, और सर्सियरारी का मतलब ये कोर्ट के ऑर्डर है, लोअर को अपर कोर्ट का ऑर्डर है, लोअर कोर्ट को स्टे का ऑर्डर है, और सर्सियरारी का जो प्रोसीजर है, रिट है, वो रिव्यू जैसे ऑर्डर जैसी स्थिति है. ट्रायल खत्म हो गया, उसके बाद ये रीओपन करके केस को एक तरह से इंफीरियर कोर्ट को आदेश देने का स्थिति है. तो ये पांचों रिट्स पूछी जाती हैं अक्सर, तो पढ़ लीजिएगा इसको ध्यान से. सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 32 में ये जारी होती है. इवन हाई कोर्ट have, this is if you compare the article 32 and article 226 of the constitution, this article 226 is the only article where the excessive power jurisdiction, excessive jurisdiction has been given to the high court. Excessive jurisdiction, article 32 में only these 5 writs can be issued, but here several orders can be passed under this article 226 by high court if violation of fundamental rights, जैसे कि ये fundamental rights का violation के मामले में, other constitutional rights, statutory rights, rights from subordinate legislation, rights based on case law, contractual rights अगर बीच हुआ है तो बहुत सारी चीजें दी हुई. Now, courts in India, see, Supreme Court is the appellate court. Sometimes trial is conducted, even in appeal matters. सब चाहे वो सिविल मैटर हो, क्रिमिनल मैटर हो, सब. लेकिन हाई कोर्ट को एक तरह से ट्रायल कोर्ट भी है, तो अपीलेट है और ट्रायल कोर्ट भी है. एंड अगर आप देखें सेक्शन 6 को देखें तो वहां पे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स की बात कही गई है सीआरपीसी में, और उसमें लिखा हुआ है कि और सेक्शन 28 एंड 29 में इनके पनिशमेंट दिए हुए हैं कि इनके कितना कितना पनिशमेंट ये लोग पास कर सकते हैं, चाहे हाई कोर्ट हो, कोर्ट ऑफ सेशन हो, अन्य कोर्ट्स हो. तो मैं अभी एट ए ग्लांस आपको यहां से शुरू करके यहां से सब क्रिमिनल साइड से बताता हूं. हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस अथराइज्ड बाय लॉ. हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस अथराइज्ड बाय लॉ, एंड इन सेशंस कोर्ट there are 3 categories of judges: sessions judge, additional session judge, sessions judge and additional session judge. Additional session judge and sessions judge may pass sentence of imprisonment, any sentence authorized by law, but whenever
the sentence to death is passed by such judges. Such judges means session judge and additional session judge. Then that shall be subject to the confirmation with the High Court. Assistant session judge may pass the sentence of imprisonment up to 10 years imprisonment, and fine depends on their discretion. And Chief Judicial Magistrate and Additional Chief Judicial Magistrate may pass sentence of imprisonment up to 7 years, and fine depends on their discretion. अपने यहाँ जो रेलवे मजिस्ट्रेट बैठता है उसकी जो रैंकिंग है वो ACJM रैंक की है, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जैसी रैंकिंग है। तो ध्यान देने की बात है, इनकी जो पावर है सजा देने की वो 7 साल तक का पावर है, और फाइन डिपेंड्स ऑन देयर डिस्क्रिप्शन। देन जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास may pass sentence of imprisonment up to 3 years, fine maximum up to 10,000 rupees, and judicial magistrate of second class may pass sentence of imprisonment up to 1 year and fine rupees 5,000 rupees. Here, district and sessions court के नाम से जाना जाता है, ये सब एक ही रैंक में आते हैं। क्रिमिनल साइड और सिविल साइड में, सिविल साइड में यही डिस्ट्रिक्ट जज हो जाते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो जाते हैं, जज हो जाते हैं, सिविल जजेस होते हैं और मुंसिफ वगैरह हो जाते हैं। कुछ एक्सटेंडेड कोर्ट्स हैं जैसे ट्रिब्यूनल, CIC वगैरह है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, कंज्यूमर मामले में डिस्ट्रिक्ट फोरम वगैरह है, कैट वगैरह है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वगैरह है, ग्रीन ट्रिब्यूनल आप सुनते होंगे नाम, अभी दिल्ली में बहुत सारे पटाखों पे बैन लगा दिया था ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। तो इस तरह के ट्रिब्यूनल वगैरह हैं। ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं, DM, SDM, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स आते हैं। तो ये दिस इज ऑल अबाउट टू courts in India, and this is the pyramid of hierarchy. Courts in India: acts, rules, codes, then manuals, SOP, schedule of power, इसको और भी कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी बोलते हैं, शेड्यूल ऑफ पावर भी बोलते हैं, SOP को प्रोसीजरल आर्डर बोलते हैं, ऑफिस आर्डर्स बोलते हैं, ज्वाइंट प्रोसीजरल आर्डर बोलते हैं, ऑफिस मेमोरेंडम बोलते हैं। ये सब जब आप फील्ड में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा, सुनाई देगा सब, और आप इस पे काम भी करेंगे। These are the natural justice, fundamental principles, impartiality, fairness. What are the fundamental principles? None should be the judge in his own case. Fairness, no person can be condemned unheard. Subsidiary principles, justice should not only be done but be seen to be done. And this is most important, duty to give reasons. Whenever you will become, after getting seniority and all, the DA, disciplinary authority. What is DA? DA क्या है? DA बताइए। पर्सनल वालों ने पढ़ाया होगा। DA क्या है? हेलो सर, डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स। DA सर, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। हाँ, तो जब कभी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होंगे और जजमेंट देना पड़ेगा, किसी को नॉट गिल्टी या गिल्टी आप प्रूव करके देंगे, जजमेंट पास करेंगे, तो वहां पर इट इज आल्सो द ड्यूटी ऑफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी टू गिव रीजंस है। दिस इज कॉल्ड सब्सिडियरी प्रिंसिपल्स। नाउ ये एक
स्टेटमेंट था ऑनरेबल जस्टिस PN भगवती एक्स जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. Vipul, can you read this slide please? Yes, sir. पढ़िए. Law must keep growing and developing with changing social concepts and values. Otherwise, there will be estrangement between law and justice, and law will cease to have legitimacy. Honorable Justice Bhagwati, Motilal Padampatar Sugar Mills Case, 1979, Supreme Court. ये इनका नाम आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा. PN भगवती के नाम से जाने जाते थे और बड़े फेमस हुए थे इस मामले में. 1979 में जजमेंट दिया था इन्होंने. तो जस्टिस PN भगवती वाज द ग्रेट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट. नाउ थोड़ा सा सिक्योरिटी इन रेलवेज एंड रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के बारे में देखेंगे हम लोग. ये भारत का नक्शा है. ऐसे कभी ट्रेन दिखाई देती थी आप लोगों ने? इस तरह की ट्रेन तो शायद कम ही देखी होगी. देखा है आप लोगों ने वो जो स्टीम इंजन चलता था? देखा क्या कभी? हेलो, किस किस ने स्टीम इंजन देखा है? हेलो, सब सो गए क्या रूम में? रूम में सभी के सभी सो गए क्या ज्वाइन करके मीटिंग? देखा है सर, स्टीम इंजन देखा है. ये पूरा देखिए, इस तरह से रेलवे पूरे भारतवर्ष में ऑलमोस्ट सारे इलाकों में आपको अपनी भारतीय रेलवे, गर्व करने वाली रेलवे जिसको आपने ज्वाइन किया है, वो आपको दिखाई देगी भारत के हर कोने में. और इसके सुरक्षा के लिए ये एजेंसीज हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं. Agencies responsible for railway security. So let us start with the question, like what is the difference between RPF and police? कोई बताए जल्दी से डिफरेंस. पुलिस और RPF में क्या अंतर है? लगते दोनों पुलिस जैसा ही है. कोई बताएगा? What is the difference between RPF and police? What is your present understanding? बताइए. कोई नहीं बोलेगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे फिर. अरे चिराग जी, सर आरपीएफ का ज्यूरिसडिक्शन जो है रेलवे मैटर्स में ही रहता होगा, और पुलिस का ज्यूरिसडिक्शन जो है वो शायद सोसाइटी से रिलेटेड मैटर्स में रहता हो. ठीक बात है. मिस्टर कार्तिकेय. यस सर. हेलो. यस सर. ये आप लोगों के क्या क्लास उसमें भी होते हैं ना, ये सभागृह में? यस सर, 11:30 से सर. 11:30 वाला क्लास होता है. और सर वो मतलब रोज नहीं होता है, पहले इन्फॉर्म कर देते हैं, तो आज 11:30 से है. अच्छा, आज 11:30 से है. ओके. आप लोगों का मैं पता करता हूं कि कैसे हम सामने सामने सेशन ले सकते हैं. दूसरा वाला सेशन मैं देखता हूं, प्लान करूंगा कि क्लासरूम में करें, है ना, इसमें सभागृह में करें. ठीक है. है ना? ठीक है सर. क्योंकि थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा सामने सामने से. ऐसे पता भी नहीं चल पाता ना कि कौन सो रहा है, कौन जग रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा. अब
मैं इतनी बारी पूछता हूं तब लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। ये मतलब मेरा ऑब्जेक्शन है कि जो कुछ भी जैसे आपने बताया, कुछ आइडिया हो तो बोलना चाहिए आदमी को। या वी आर नॉट इन ब्लेम गेम। तो रेगुलर बेसिस पे आप लोग अटेंड करते हो ये कि किसी किसी दिन टर्न आता है आप लोग का 3A 3B का कंबाइंड, ऐसा हफ्ते में कितने दिन सभागृह में क्लास करते हैं आप लोग? सर ऐसा कुछ फिक्स नहीं है सर अभी, मतलब टीचर्स पहले इन्फॉर्म कर देते हैं तो हम लोग जाते हैं। Okay. So let us see the arrangement, and hopefully we will meet physically in the Sabagri, right? यस सर। चलिए, hope for the best. As you said कि jurisdiction में तो अंतर रहता ही है, इनमें आरपीएफ और पुलिस में अंतर है, वो jurisdiction में तो अंतर है, लेकिन क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल डिफरेंस बिटवीन दीज टू, एक्सेप्ट डिफरेंट है। हाँ, बोले सुयश, बोले। So they're governed by different acts. Maybe I think police is governed by the Indian Penal Code, or exactly I don't remember the name of the act. I think RPF is governed by railways. ओके फाइन, लेट अस कंप्लीट, क्योंकि टाइम हो रहा है। कितने बजे तक क्लास होता है आपका? हेलो, 10:55. हाँ, 11 बजे के आसपास तक होता है सर। ओके, चलिए अभी इसको कंप्लीट करते हैं, फिर इसका रिपीट भी करा देंगे। अक्सर ही पूछा जाता है। देखिए, बोथ आर द फोर्सेस। आरपीएफ इज द फोर्स ऑफ यूनियन, सेंट्रल फोर्स। आरपीएफ इज द फोर्स ऑफ यूनियन एंड पुलिस इज द फोर्स ऑफ स्टेट। ये पूछा जाता है अक्सर आपके एग्जाम में, सो प्लीज कीप इन माइंड, RPF is the force of union and police is the force of state. Both are the forces. RPF has been constituted under the RPF Act 1957. Police has been constituted under the Police Act 1861. Both are the forces, and this GRP is the part of the state force, state police, and 50% emoluments are given by the railways, paid by the railways to the GRP. So this is the evolution of RPF. This was first of when started. ये रेलवे एक कंपनी की तरह काम करती थी। So private security of railway companies. तो ये it was started in the year 1854. ये वॉच एंड वार्ड जैसा एक गार्ड जैसे लोग थे, शुरुआत हुई थी। देन इवॉल्व्ड एज रेलवे सिक्योरिटी, RSF 1954 टू 1956 ये रहा रेलवे सिक्योरिटी फोर्स की तरह। देन रीऑर्गेनाइज्ड एज स्टैट्यूटरी बॉडी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, RPF Act 1957. This has been constituted and this is upgraded as armed force in 1985. This is the organizational structure of RPF. ये देख लीजिएगा। I will share this slide, and if anything is there, then please ask me. डायरेक्टर DG जैसे वहाँ स्टेट्स में होता है, जैसे स्टेट पुलिस में होता है, वैसे ही DG RPF भी होते हैं, रेलवे बोर्ड में बैठते हैं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल, ADG, प्रिंसिपल Chief Security Commissioner, PCSCs are there, additional deputy chief, additional or deputy chief security commissioners, senior divisional security commissioners are there, divisional security commissioners are there, assistant security commissioners, और RPSF में इनको कमांडेंट और असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह बोलते हैं। ये जो आपकी स्टाफ है,
inspectors, sub-inspectors, assistant sub-inspectors, head constable, and constables. These are taken as non-gazetted posts. This is the strength of the force. This is constituted under RPF Act 1957. This is an armed force of the Union under the control of Ministry of Railways, represented in Railway Board through members traffic. तो अभी ये member traffic से हटके सीधा CRB के कंट्रोल में चला गया है और अभी member traffic तो this is the sanction strength 75,402. This is the present strength, and ये घटता बढ़ता रहता है. These are the branches of the RPF: static, mobile, crime intelligence, जिसको CIB, SIB सब बोलते हैं. Dog squad is there, store wing, prosecution wing is there, and this fire wing is abolished. There is also Railway Protection Special Force in view of Chinese aggression in 1962. A new force named the Special Emergency Force (SEF) was formed on 21st November 1962. This was later renamed as the Railway Protection Special Force and a part of the RPF. At present, there are 15 battalions of RPSF. 3 battalions are under establishment in Indian Railways. List as follows. See the list. 1st Battalion Lamding में, 2nd Battalion in Gorakhpur, 3rd Lucknow, 4th Malegaon, 5th ये न्यू जलपाईगुड़ी है, न्यू जलपाईगुड़ी, 5th Trichy, 6th Delhi, 7th Hyderabad, 8th Chittaranjan, 9th Battalion Ambala, Jagadhri में, 10th Battalion Dhanbad, 11th Sonpur Garhara, 12th Battalion Thakurli Mumbai, 13th Battalion RPSF not created, 14th Alipurdwar, 15th आसनसोल एंड 16th फिरोजपुर. तो इस तरह से सब बना हुआ है. These are the legal powers of RPF. Under RPF Act, power of arrest. Under RPOP Act, the power has been given to the RPF for arrest and prosecution fully. This is the only armed force of Union like CISF, BSF, ITBP, Coast Guard, BSB, etc. But this is the only force of Union who has got the power of arrest and prosecution both. Full power under the Railways Act, full power under the RPOP Act, right? तो ये इस पर हम चर्चा करेंगे जब रेलवे एक्ट की बात करेंगे. देन जीआरपी इस तरह से बनी. जो पुलिस एक्ट है 1861, ये गवर्नमेंट रेलवे पुलिस इज द पार्ट ऑफ द स्टेट फोर्स पुलिस. ये वैसे ही है सब. ये इनकी स्ट्रेंथ घटती बढ़ती रहती है. ये 38,000 अभी सैंक्शन स्ट्रेंथ है. 50% ऑफ cost of GRP is paid by the Ministry of Railways. Entry number 2 in the state list of the Constitution, it has been given mentions like the police, including railway police. So railway police ये 7th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का है. उसमें एंट्री नंबर 2 है. लिस्ट 2 का एंट्री 2 उसमें लिखा हुआ है. 50% of cost of GRP is paid by the Ministry of Railways. ये division of responsibilities GRP local police RPF का है. इस पे हम एक बार फिर से आपको बता देंगे. टाइम थोड़ा सा खत्म हो रहा है. आप स्लाइड देख लो, पढ़ लेना, जो पूछना होगा उसको पूछ लेना.
GRP, district police and RPF, expectation of passengers, peaceful, hassle-free, comfortable journey, security to self and baggage, punctuality, safe delivery of consignments booked to ये सब चीजें हैं. Passenger expectation and constraints. नो सिंगल कमांड, तो ये कई बार कंफ्यूजन रहता है. फोटो देख लीजिए और समझ जाइए, ऐसा आपने इससे पहले फील किया होगा. किसके पास जाएं? कोई क्राइम होता है रेलवे में तो एक बार पब्लिक को ये समझ नहीं आता किसके पास हम अप्रोच करें. तो अगर पैसेंजर बिलोंगिंग से और पैसेंजर बॉडी से मारपीट का मसला है, तो आरपीएफ को भी आप जहां अगर दिखाई देता है आरपीएफ थाने जाएंगे तो वो जहां का मैटर होगा वो वहां पे ये जीआरपी का मैटर होता है तो जीआरपी में ले जाके. रेलवे प्रॉपर्टी और टिकट लेस चेकिंग फेकिंग ये सब हम जब पढ़ाएंगे, आपको रेलवे एक्ट पढ़ाएंगे तो इसको विस्तार से चर्चा करेंगे नेक्स्ट आप जब वो पढ़ेगा क्लास को. ठीक है. देखिए, हर जैसे ही कोई और जुरिस्डिक्शन आता है, किसी और स्टेट में गाड़ी पहुंचती है, वहां का लोकल पुलिस एंट्री कर जाता है, जीआरपी वगैरह वहां एंट्री कर जाते हैं. जैसे कि ये देखिए, अगर आप फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर इन्वॉल्विंग ट्रेवल टाइम ऑफ 30 मिनट्स बिटवीन अंबाला टू कालका, a passenger has to deal with 4 different GRP units. देख रहे हैं आप, ये पंजाब भी पड़ जाएगा, हरियाणा का पुलिस पड़ जाएगा, उत्तर प्रदेश का पुलिस पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश का भी पुलिस पड़ जाएगा. So the 6-hour travel between Delhi to Jhansi covering 300 kilometers falls under different states of the GRP. तो इस तरह से इनका जुरिस्डिक्शन बढ़ता रहता है. जुरिस्डिक्शन एंड कॉमन प्रॉब्लम्स, ये ध्यान देने की बात है, पढ़ लीजिएगा इसको. कॉमन फंक्शनल एरियाज ऑफ द आरपीएफ एंड जीआरपी, जैसे स्कॉटिंग में दोनों एक साथ चलते हैं, कई बार एक का होता है एक का नहीं होता है. कॉमन फंक्शनल एरियाज, रेलवे अ सॉफ्ट टारगेट, ये धरना प्रदर्शन, गुजर आंदोलन, जाट आंदोलन, ये सब चलता रहता है. इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, रेलवे एक्ट पढ़ेंगे जब, तब देखेंगे. प्रिपेयर्डनेस ऑफ द रेलवेज, तो ये आइडेंटिफाइड पेट्रोलिंग, गार्डिंग, यूज ऑफ मॉडर्न गैजेट्स, मैन पावर प्लानिंग एंड इंटेलिजेंस, फेल्योर ऑफ सिक्योरिटी एंड लायबिलिटी ऑफ द रेलवेज, ये सब दिया हुआ है. 124 कंपनसेशन फॉर अनटूवर्ड इंसिडेंट दिया हुआ है रेलवे एक्ट में. तो रेलवे एक्ट को जब पढ़ेंगे तो हम और अच्छे से आपको इसको बताएंगे. तो थैंक यू वेरी मच. जय हिंद. Thank you, sir. ठीक है, इसको